Hello student, in this class we are going to study generation and conduction of nerve impulse, which is one of the most important topic of our NCERT syllabus, which comes under the chapter neural control and coordination. So in this topic we are going to study about the transmission of impulse within the neuron and from one neurons to the another neurons. So first of all, let's see what is the impulse or what is nerve impulse. So impulse is nothing but a biochemical or electrochemical disturbance which occur inside a neuron while it transmits or carry signal. Now we have already studied about neuron in our previous class, and we know that this neuron is an excitable cell whose membrane is selectively permeable. In nature. Now let's see the impulse conduction. The impulse conduction basically depends upon three factors. ये तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. अब यहां पे मेम्ब्रेन बोला तो कौन सा मेम्ब्रेन? इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन. एक्सोन मेम्ब्रेन जिसको हम एक्सोलेमा भी कह सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सेकेंड इज द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन एंड द थर्ड इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस बिटवीन the axon and the ECF, that is extracellular fluid. Now let's look in detail. This is an neuron which we have already studied in the previous class. This is a neuron and we know that this is dendrite. ये dendrite हो गया. अब dendrite कैसे, जो मैंने बताया था, dendrite and dendron, dendron will leads into cell body and this cell body will elongate into a fiber or thread like structure called axon. तो अब ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के सराउंडिंग में जो स्पेस होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं. और इस स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह सकते हैं, जिसको शॉर्ट में ECF कहते हैं. तो पहला जो कंडीशन है
इंपल्स कंडक्शन का, ये फैक्टर बोल सकते हैं। परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, तो कौन सा मेम्ब्रेन, किसका परमिबिलिटी बोल रहा है, इस मेम्ब्रेन का। द परमिबिलिटी ऑफ द एक्सोलेमा और द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। Okay, next is the osmotic concentration. Osmotic concentration, that is between the exoplasm and the extracellular fluid, and also the electrical equivalence between the axon, that is the exoplasm, and the ECF. ECF क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जिसको हम कहते हैं जो न्यूरॉन्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। तो इन शॉर्ट मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम क्या लिख सकते हैं, ECF। सो हियर द इंपल्स कंडक्शन विल डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट इज परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, सेकंड इज ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, एंड द थर्ड इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस। नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल हाउ द इंपल्स इज ट्रांसमिटेड विद इन अ न्यूरॉन। Now, this is a neuron. This is a dendrite. As you know, this is cell body, nucleus, and this is axon. So what happens here? The neurons are arranged in a chain like this. This is the first neuron, this is the second neuron. Now, when the impulse is generated, or impulse when reaches the neuron, suppose this is the impulse which I am drawing it in red pen. This is the impulse, it is now just received by the dendrite. Now the dendrite will transmit the impulse to cell body. ये सेल बॉडी को भेजेगा और सेल बॉडी से होते हुए कहां जाएगा, एक्सोन में, एंड भाया दिस एक्सोन। और ये एक्सोन क्या करेगा, इंपल्स को ट्रांसमिट कर देगा कहां पे, तो नेक्स्ट न्यूरॉन्स को, लेकिन भाया अ साइनेप्स। Now you can see this is a synapse. Synapse means the gap or space between the two neurons. Here one is the nerve endings and another is the first part of the neuron. This is the ending of the axon and this is the first part of the neuron. This is called as the synapse. पहले synapse से होते हुए फिर second neuron में transmit होगा। Okay, so let's see how the impulse is conducted or transmitted within a neuron first of all. So this impulse transmission occurs in three stages, or you can say three steps. First is polarized, second is depolarized, and the third is repolarized. Polarized, depolarized, and repolarized. Now let's take a small segment of an axon, and here we'll see in this very small area how the impulse is transmitted. So this is a fiber which we called as nerve fiber, which is divided into three parts, first, second and third. This is the very small area which I have taken. Okay, now these are the
gate channels, or you can say sodium ion gate channel. Sodium ion gated channel. Next, the membrane, which I have already told, that the membrane of axon called axolemma, the space or the fluid present, substance present within the axon is called as axoplasm. This axoplasm is deficient in sodium ion. So that is why here there is negative charge, which is indicating electronegative or electronegativity. In axoplasm there is high electronegativity, that is less sodium ion, or you can say no sodium ion is here. Outside the membrane, as I told you, the space is called as ECF, extracellular fluid is there. Here the amount of sodium ion is high, so it is denoted as positive charge. So we can write here, it is highly electropositive. So you can say the outside the neuron it is positive, and inside the neuron it is negative, which is indicating what? Here there is more sodium ion and less potassium ion, but inside there will be less sodium ion and high potassium ion. Now this condition is called as resting potential, or you can say resting stage, where there is no transmission. अभी किसी भी तरह का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं that the neuron is at rest. अभी जो न्यूरॉन है वो अभी रेस्टिंग कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का भी कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है. बाहर क्या है? बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा है और अंदर निगेटिविटी ज्यादा है. वो क्यों है? क्योंकि बाहर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल द मेम्ब्रेन इज, जो मेम्ब्रेन होता है इट इज impermeable to sodium ion. यह भी सोडियम आयन के लिए impermeable है. ओके, नाउ लेट्स सी what happens actually when the impulse is traveling or just reach the first site. सो इसको जैसा और अच्छे से बना लेते हैं. So as I said, I have taken in here what a very small segment of a neuron, or you can say axon, and I told you that outside it is more electropositive and inside it is electronegative.
and these are the voltage gated or sodium ion channel. So positive, negative, okay. So this stage is called as resting stage, जहां पे अभी किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, और इसको हमने क्या कहा था, पोलराइज्ड भी। ये पोलराइज्ड है, जैसा कि बाहर पॉजिटिव है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। नेक्स्ट, अब सपोज जो इंपल्स है वो यहां पे पहुंच चुका है, दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। सो सबसे पहले देखिए, यहां फर्स्ट पार्ट में अगर इंपल्स पहुंचता है तो फिर क्या होता है। सो आई एम ड्रॉइंग हियर विथ रेड पेन। Now the impulse had just reached the first segment or first part of the neurons. Okay? So what happens here? When the impulse reaches to the first part, then the sodium ion channel will open. Sodium ion channel जो है वो खुल जाएगा. It opens up. अब क्या होगा? तो बाहर से जितने भी सोडियम आयन हैं वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, तो जिसको हम क्या लिखेंगे, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, दैट इज एंट्री ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम ECF टू axon, or you can say exoplasm. Is that clear? So यहां पे चार्ज जो होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहां पे जैसे पॉजिटिव ऊपर था, मींस बाहर की तरफ था, नेगेटिविटी अंदर की तरफ था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे और अंदर दैट इज एक्सोप्लाज्म में पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? मीन्स फ्रॉम द पोलराइज्ड स्टेट दिस सेगमेंट विल नाउ बी डीपोलराइज्ड। अब ये जो सेगमेंट है ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइज्ड, क्योंकि अभी क्या है कि चार्ज जस्ट उल्टा हो गया है, क्योंकि यहां से सोडियम आयन मींस सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आया है और पोटेशियम आयन अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है। अंडरस्टूड? बट व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन, मींस बाकी पार्ट में क्या, तो बाकी पार्ट जो होगा वो पोलराइज्ड स्टेट में रहेगा, तो अभी यहां पे इंपल्स ट्रेवल नहीं किया है। So it will be electropositive outside and electronegative inside. So we can write down here, it is polarized and this is also polarized. So अभी हमें क्या पता चला कि जो इंपल्स है अभी किस सेगमेंट में है, तो पहले पार्ट में ही है, अभी दूसरे पार्ट में मूव नहीं किया है। So till now what we have seen that how the impulse is transmitted. अभी ट्रांसमिशन पूरा हुआ नहीं है, लेकिन यहां तक मैंने अभी तक कंप्लीट किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सेगमेंट जो मैंने लिया था, 3 सेगमेंट में उसको डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट सेगमेंट में जो हमने देखा कि वो पोलराइज था, पहले पोलराइज से डीपोलराइज्ड हो गया। तो हमारा जो पहला स्टेज था, तो रेस्टिंग स्टेज में पोलराइज था, तो अब क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल में हम क्या लिख देंगे इसको, डीपोलराइज्ड, जिसको मैं AP करके डिनोट कर रहा हूं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
नाउ अब जो इंपल्स है पहले सेगमेंट से होते हुए कहां मूव करेगा, दूसरे सेगमेंट पे। सो जब इंपल्स दूसरे सेगमेंट में जा रहा है तो ये भी पोलराइज से डीपोलराइज्ड हो जाएगा, तो जिसे मैंने रेड पेन से दिखाया है। You know that this is the sodium ion channel. ओके, सो अभी देखिए मैंने जो डीपोलराइज स्टेट है मैंने सेकेंड सेगमेंट पे इसको ट्रांसफर कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं जो पहला सेगमेंट था ये फिर से क्या हो गया, पोलराइज्ड स्टेट में। क्या होता है यहाँ पे, एक बार जब इंपल्स पहले सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पे ट्रांसफर होता है तो फिर जो पहला सेगमेंट है वो फिर से बैक हो जाता पोलराइज्ड कंडीशन में। देखिए पहले पोलराइज्ड में था, फिर डीपोलराइज्ड हुआ, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, देन अगेन इट विल बी पोलराइज्ड। तो बाहर क्या हो जाएगा, बाहर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और अंदर में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, व्हेन द इंपल्स इज शिफ्टेड, जब ये शिफ्ट होता है फ्रॉम फर्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट सेगमेंट, देन व्हाट हैपेंस, द सोडियम आयन चैनल ओपन्स अप, और ये सोडियम आयन क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। यहां देखिए ये अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। ये जो सोडियम आयन है किस रेशियो में एक्सचेंज होंगे, 3:2 में। 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे और उसके बदले 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे। ओके, तो यहां हमें एक बात याद रखना होगा, दैट द एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन takes place in 3:2 रेशियो। मतलब 3 सोडियम अगर बाहर जा रहा है तो उसके जगह पे 2 पोटेशियम आयन को अंदर आना पड़ेगा। सो ये देखिए जब 3 सोडियम आयन बाहर जाएगा तो फिर यहां पे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगा और बाहर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा ही। ओके, सो नाउ अब इंपल्स जब सेकेंड सेगमेंट पे जा रहा है तो सेकेंड सेगमेंट में भी क्या होगा, सेम कंडीशन जो पहला वाला हुआ होगा। तो पहले सेगमेंट में क्या हुआ था, बाहर से सोडियम आयन अंदर की तरफ आया, तो यहां हम क्या दिखा देंगे, प्लस प्लस प्लस, दैट इज पॉजिटिविटी इज इंक्रीजिंग, एंड हियर इट इज माइनस। ओके, और जो तीसरा सेगमेंट होगा ये पहले की तरह ही पोलराइज्ड स्टेट में है, क्योंकि अब तक तो यहां पे किसी भी तरह का ट्रांसमिशन हुआ नहीं है। So it is positive, positive, positive on outside and negativity inside. Okay, so what we have seen here, that the first segment which was earlier polarized is becoming depolarized due to the impulse, and after transmitting impulse to the next segment, this first segment will again polarize, and which we can say as repolarization. इसको अब हम repolarized कह देंगे, और सेकेंड सेगमेंट पर जब जाएगा तो पोलराइज से क्या हो जाएगा, depolarized. ओके, और ये तो पहले की तरह, इसको हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड। Now let's see when the impulse reaches the third segment. तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जिस तरह से पहले सेगमेंट से सेकेंड सेगमेंट में गया और सेकेंड सेगमेंट से जब फिर से थर्ड सेगमेंट में जाएगा तो क्या होगा, ये तो रिपोलराइज्ड स्टेट में रहेगा, लेकिन ये जो डीपोलराइज्ड है ये फिर से रिपोलराइज्ड हो जाएगा, और ये पोलराइज्ड वाला क्या होगा, डीपोलराइज्ड हो जाएगा। सो लेट्स सी हियर। So as you can see,
I have drawn here with black ink. सो यहाँ पे ये पहले ही ये पोलराइज्ड है, मीन्स रिपोलराइज्ड स्टेट में है, तो बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हियर ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, सेम हियर। यहाँ पे फिर क्या होगा, सोडियम आयन अंदर से बाहर की तरफ और पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ। These are the sodium ion channels. Okay, so what happens in the third segment? Again same case, अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ जाएगा क्योंकि सोडियम आयन अंदर की तरफ आया है, और बाहर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। सो इस तरह से क्या होता है कि इंपल्स न्यूरॉन्स में ट्रेवल करते हैं। सो वी कैन राइट हियर repolarized and this is depolarized. ओके, सो इस तरह से क्या होगा, जो इंपल्स है, इंपल्स जो है वो यहां से होते हुए, डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी तक पहुंचा, और सेल बॉडी से एक्सोन में, एक्सोन से पास होते हुए कहां तक जाएगा, पूरा एक्सोन टर्मिनी तक। अब एक्सोन टर्मिनी में मैंने क्या कहा था कि ये जो एक्सोन है ये एंड होता है एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनिक नॉब। इसे क्या कह दिया हमने, एक्सोनिक नॉब। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, और इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर में जो इंपल्स होता है, ये इंपल्स पैक हो जाता है। दिस इंपल्स, द इंपल्स व्हेन रीच द एंड ऑफ द एक्सोन, that is axonic knob, then, or you can say it is packed in the form of vesicle। ये वेसिकल के फॉर्म में फिर पैक हो जाएगा, जिसको हम लोग साइनेप्टिक वेसिकल्स भी कह सकते हैं, एंड इज रिलीज्ड इन द साइनेप्स। फिर ये साइनेप्स में रिलीज कर दिया जाता है। ओके, सो लेट्स लुक दिस पार्ट इन डिटेल। This is the first neuron, and this is the end of the neuron. This is the second neuron. As I mentioned before also, that the neurons are arranged in a chain like manner or order to form a nervous system. तो एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा, ये सब चेन में अरेंज होंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले जो इम्पल्स है ये डेंड्रॉन रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद सेल बॉडी को देता है, सेल बॉडी से होते हुए ये जो इंपल्स है एक्सोन्स होते हुए यहाँ तक नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा। इस नर्व एंडिंग को क्या बोला हमने, एक्सोनिक नॉब। इसको एक्सोनिक नॉब कह दिया। अब इस एक्सोनिक नॉब में क्या होता है, वेसिकल के फॉर्म में इंपल्स जो है वो स्टोर हो जाता है, मींस पैकेज्ड हो जाता है, एंड देन इट इज रिलीज्ड इन साइनेप्स। फिर ये साइनेप्स में रिलीज होता है, और यहां पे जब रिलीज होगा देन द सेकेंड न्यूरॉन विल रिसीव इट, एंड सिमिलर फैशन ऑफ वर्क विल बी डन बाय द न्यूरॉन्स। सो दिस इज हाउ द न्यूरॉन्स is transmitted within the neuron.
that is the transmission of nerve impulse. So let's look at this one once again, that the nerve impulse is transmitted in 3 steps. जैसे मैंने बोला था 3 स्टेप्स में ट्रांसमिट होते हैं, और ये 3 स्टेप्स क्या क्या है? The 3 steps are polarization, depolarization, and third is repolarization. इन पोलराइज्ड स्टेट, जैसा मैंने बोला, अगर न्यूरॉन्स पोलराइज्ड स्टेट में है देन वी कैन से दैट इट इज इन रेस्टिंग स्टेज, और इस रेस्टिंग स्टेज में किसी भी तरह का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, न्यूरॉन्स रेस्ट में है, मींस आवर नर्वस सिस्टम इज एट रेस्ट. बट व्हेन द इंपल्स रीचेज द न्यूरॉन, अगर इंपल्स या फिर सिग्नल या स्टिमुलस, वी कैन से एनी स्टिमुलस, जब ये पहुंचता है, मान लीजिए पहला साइड में, जैसे मैंने बोला था, तो फर्स्ट पार्ट में अगर ये पहुंच रहा है स्टिमुलस, देन फ्रॉम पोलराइज्ड स्टेट इट इज बिकमिंग डीपोलराइज्ड. अब डीपोलराइज्ड क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे इनफ्लक्स हो रहा है, किसका? सोडियम आयन का इनफ्लक्स हो रहा है और पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा है. एंड बट द रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स आर एट द पोलराइज्ड कंडीशन और स्टेट. देन व्हेन फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट द इंपल्स इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, देन व्हाट हैपेंस? द सोडियम आयन will go out. तो यहां पे सोडियम आयन बाहर की तरफ जा रहा है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहां पे सोडियम आयन बाहर जा रहा है, पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ रहा है. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लक्स. सॉरी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इफ्लक्स. इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है और फिर से पोलराइज्ड स्टेट में ही आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? रीपोलराइज्ड स्टेप. नेक्स्ट, अब इंपल्स जो है यह डीपोलराइज्ड हो गया. यहाँ पे जब इंपल्स यहाँ पहुंचा तो ये डीपोलराइज्ड हो गया, फिर जब यहाँ से इंपल्स यहाँ जा रहा है तो ये पोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड हो गया, और जो पहले वाला स्टेप है या पहले वाला जो पार्ट है वो रीपोलराइज्ड हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम और विद इन द न्यूरॉन्स. So in our next class we will see how the impulse is shifted from one neuron to the another neuron, that is the conduction. Thank you.